की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें अहम फैसले लिए गए जिनके बारे में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। खरीफ की एमएसपी घोषित की गई है और बढ़ी भी है। साथ ही रेलवे अब 4G स्पेक्ट्रम पर काम करेगी। रेलवे का सफर यानी कि अब अधिक सुरक्षित होगा। रेलवे की गति बढ़ेगी। साथ ही जब रेलवे चलेगी तो सिग्नल का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज 4G स्पेक्ट्रम अब रेलवे को मिलेगा। साथ ही 2019 तक जिन फैक्ट्रियों के चलने पर सब्सिडी दी जाने का प्रावधान था उसे अब 2021 तक बनने पर भी मिलेगा। साथ ही किसानों के लिए भी कई अहम घोषणाएं की गई। इस कैबिनेट ब्रीफिंग में यूरिया को लेकर अहम फैसला हुआ है। लागत पर 50% ज्यादा एमएसपी की घोषणा की गई है। पिछले साल के मुकाबले गेहूं की भी ज्यादा खरीद की गई है यानी कि 82,000 करोड़ से ज्यादा पैसे सीधे किसानों के खाते में गया है। दलहन तिलहन की भी सरकारी खरीद खूब की गई है। दलहन तिलहन पर रकबा बढ़ाने पर भी काम हो रहा है और खरीफ के न्यूनतम समर्थन को भी मूल्य भी घोषित किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बैग पर सब्सिडी बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। किसान आंदोलन से जुड़े सवाल पर भी केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि सरकार हर तरह से उनकी किसी भी शंका का समाधान करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वार्ता करने के लिए तैयार है और पहले भी जितनी राउंड्स की वार्ता हुई है उसमें भी एक ठोस प्रस्ताव किसानों को दिया गया है। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो कार्यक्रम है डॉक्टर स्पीक वो भी जारी है। Thank you, Jaya. And let me again quickly introduce the medical experts who are joining us in the program. Dr. Naveed Wake, Professor and Head, Department of Medicine, Chairman, COVID-19 Task Force. We also have with us Dr. Rakesh Kumar, Professor, Department of ENT, All India Institute of Medical Sciences, Delhi. Dr. Nilambar Bhatt, Senior Physician, Dr. A.K. Varshney, Department of Medicine, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital. Warm welcome to our medical experts. Dr. Naveed Wake, if we can begin with you, sir. A crucial phase of unlock is what we are headed towards across states. As a medical expert, what precautions must be central to our conduct and what lessons have we learned from the past? So you see how many number of patients we have currently active today in the country. It is around 13 lakhs. And till today, 90,000 patients are coming every day. So virus has not been eradicated. Virus is with us and virus is going to remain with us. We have to see that this is a virus which brought tsunami in the country. We went to 4 lakh cases per day. So we have to go very slow and very slow. The competition should be which district is opening slowly. And each district has to do lot of tests, increase the number of tests and reduce your positivity rate. Each district has to keep its positivity rate less than 1%. And once 5% is reached, we have to again lock it. I know we have to, economic activity has to increase, it has to increase, but we have to be very innovative. District administration and village and tehsil administration, they have to talk to people how we can keep our test positivity rate low and keep our economic activity going on. So this is the balance. This balance has to be innovative. It will come only if we talk and change our strategies. You see, we can open alternate day, we can do odd even, we can do 50% in the morning, 50% in the evening. So new strategies have to be brought in. And this is not one sector. It has to be different for each sector. For hospitality, for tourism, for agriculture, for other industries, it has to be a different strategy. And sir, from administration to individual responsibility as we are headed out to work, we all know about COVID appropriate behavior, whether or not we've responsibly conducted ourselves in the past. How crucial does that become? Individual responsibility in a pandemic like this. So see, I have been responsible for the second wave. I have to admit this. All of us have to admit this, that we are responsible for second wave. Now are we going, because there are only two things which can help us. One is clean mask, second is vaccination. So, and I have to go out only if it is required. I have to do gatherings in minimal amount. So unless I am responsible for second wave, I admit it, and then everybody has to admit like this. And then secondly, we have to go for vaccination, which is very important.
is everybody vaccinated? Everybody who is surrounding me in my family, who is more than 45 years of age, are they vaccinated? The main mantra should be children should ensure that their parents are vaccinated. जी Have we vaccinated our parents? It is the responsibility of 10-year-old, 20-year-old, 30-year-old, 40 years old that we vaccinate our people. We vaccinate people close to us, and this vaccination has to start from villages first, where health services are little poor. Then they have to come to Tehsil. Then they have to come to districts, smaller districts. Tier 2 cities, Tier 3 cities have to get vaccination first. So rural people should get first, then Tehsil, then Tier 2, Tier 3 cities, and then we come to the bigger cities. So we have to change our paradigm, because we have to vaccinate and then clean mask. जी Our mask has to be clean. Many infections can happen because of unclean mask. So masks have to be clean. We have to change it daily. Even if it is required morning, evening, it can be changed. So डॉक्टर that is विक, बिल्कुल डॉक्टर विक, यहाँ पर अनलॉकिंग के बाद हमें और भी ज्यादा कड़ाई बरतने की जरूरत है। वैक्सीनेशन को लेकर लगातार यहाँ पर बताया जा रहा है कि वैक्सीन ही सबसे बड़ा और बेहद अहम वेपन है, हथियार है इस कोरोना वायरस के खिलाफ। लेकिन जिस तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई तरह के सवाल यहाँ पर दर्शकों के मन में हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सही और गलत जानकारी यहाँ पर मिलती रहती है। ऐसे में वैक्सीनेशन से जुड़े कई तरह के जो आम सवाल सामने आते हैं कि क्या मैं एलर्जी का मरीज हूं तो मुझे वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, या फिर एक वैक्सीन की डोज लगने के बाद भी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। ऐसे में वैक्सीन की क्या जरूरत है? जब इस तरह के सवाल सामने आते हैं तो क्या जवाब देंगे आप? जवाब मैं दूंगा, मुझे अगर मरने से बचना है तो मुझे वैक्सीन लगानी पड़ेगी। मुझे मरने से बचना है जी, मुझे बचाओ और मुझे वैक्सीन बचाएगी। इसीलिए अभी 21 जून से 18 से 44 साल के लिए सबके लिए खुल जाएगी। क्या हम 2 हफ्ते में, मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 हफ्ते में क्या सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को वैक्सीन लगवाएंगे? वो इंश्योर करेंगे कि पेरेंट्स अगर मना कर रहे हैं तो उनको बोलो भाई आप वैक्सीन लगाओ। आप भी बच्चे हैं, मैं भी बच्चा हूं, हमें बोलना पड़ेगा। वैक्सीनेशन गांव-गांव में जाके 45 साल से ऊपर करनी पड़ेगी। और उसके बाद हमें 18 से 44 साल पे भी फिर सबको, जैसे हमने फेज 1 में वैक्सीनेशन किया, जैसे हमने पहले वैक्सीन किसको लगाई, पहले हेल्थ केयर वर्कर को लगाई, फिर फ्रंट लाइन वर्कर को लगाई, फिर एल्डरली को लगाई, फिर कोमॉर्बिड कंडीशन को लगाई, इसी तरह हमें 18 से 44 साल में भी करना पड़ेगा। जो कोमॉर्बिड कंडीशंस के हैं आप उनको पहले लगाइए, उसके बाद जो 35 से 45 के हैं उनको अलग लगाइए, कुछ में बच्चों के जैसे एग्जाम्स हैं उनको पहले लगाइए। तो हमें इस तरह करना पड़ेगा। वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और पहली वैक्सीन भी लग जाए तो वो भी आपको प्रोटेक्ट करेगी। देखिए, वैक्सीन आपको मरने से बचाएगी, बस एक मंत्र है जी। चाहे वो मुझे कोविड थोड़ा सा हो भी गया तो बहुत माइल्ड कोविड होगा, इतना सीवियर कोविड नहीं होगा। अगर मुझे आज की डेट में दोबारा से इतना तेज तूफान आता है तो मुझे मरने से बचाने का एक ही तरीका वैक्सीन है। Right. Dr. Vik, also given the very high number of cases that came up in the second wave of COVID-19, there are also questions about if I have contracted COVID, if I was COVID positive in the recent days and weeks, when is the latest that I can go for the vaccine now? So government guidelines are very clear. It is after 3 months. 3 months. So if we take it after 3 months, it is fine. Your immunity will remain up to 3 months. And when the vaccines come more in number, then this period can be reduced. But for the time being, 3 months is a very safe period. And after 3 months, we can take our first shot of vaccine. And I am saying again, if I have got a COVID, that means I have got my first vaccine, which is a live vaccine. Now I take one more shot. Maybe after that, I will require my next shot after a long time. So I need only one shot after 3 months after I have got COVID. So it's very plain and simple. And so how would you like to underline the point that although you rightly mentioned that vaccine is life-saving, but even after taking the vaccine, COVID-appropriate behavior like wearing a mask remains important because one can still contract infection? So that is what I am saying. Clean mask. I am not saying now mask. I am saying clean mask. And maybe you have to change mask twice a day. So clean mask is must. Vaccine takes 2 months to act. जी वैक्सीन आपको 2 महीने लेती है असर आने में, लेकिन क्लीन मास्क आपको इमीडिएट असर देता है। तो हमें क्लीन मास्क पहनना है चाहे हम वैक्सीन ले भी लें। तो इवन इफ वी आर वैक्सीनेटेड वी हैव टू हैव क्लीन मास्क। डॉक्टर विक,
बिल्कुल डॉक्टर वेग, यहाँ पर ये भी है, महिलाओं को लेकर भी हाल ही में सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस हैं वो चेंज हुई हैं। जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, क्या उनके लिए वैक्सीन लेना सेफ है? इस बारे में भी एक बार फिर हम चाहेंगे आपने दर्शकों को थोड़ी स्पष्टता दें। जो महिलाएं स्तनपान करवा रही हैं उनके लिए 100% सेफ है। वो बिना सोचे बिना समझे ले लें, क्योंकि वो भी बचेंगे और वो बच्चा भी बचेगा और घर में जो बाकी लोग हैं वो भी बचेंगे। इसीलिए मैंने पहले भी बोला, जिनको वैक्सीन मिल रही है वो अब ले लो। मेरे माता पिता ने वैक्सीन ली कि नहीं ली, ये मेरा सबसे बड़ा एजेंडा है। इसीलिए जो छोटे बच्चे का भी अगर हमें ख्याल रखना है तो वो माताएं ले सकती हैं। जहां तक प्रेगनेंसी का सवाल है, उसमें अभी गवर्नमेंट ने अभी नहीं उसको ओके किया है, बट वो मेरे को लगता है कुछ दिनों में कर देंगे। पर मेरे हिसाब से वो भी सेफ है, लेकिन हमें उसमें बड़ा सेफ चलना पड़ेगा, बिकॉज उसमें माँ और बच्चे दोनों का हमें ख्याल रखना है। Right. Let's also connect to our second medical expert, Dr. Nilambar Bhatt, continues to be with us. But I think before we connect with Dr. Bhatt, if we can, Dr. Vik, bring you a question that has come on Facebook. Poonam Saraswat is asking, I'm 23 years old. I was infected with COVID-19 on 18th of May. It is my 23rd day of the infection. I have dry cough and rashes all over my skin. What should I do? And there's a supplementary question about when can I get vaccinated, that you've answered already. But sir, 23rd day of infection. Vaccine she can take after 3 months, and dry cough can remain for some time. If you are asymptomatic, other symptoms are not there, you should not worry much. You should do your breathing exercise, like inhale and then exhale little longer. Inhale in 4 seconds and exhale in 8 seconds. And then you walk for 10 minutes every hour for 6 to 7 times a day. So this will, whatever deconditioning has happened, this deconditioning will improve, and your breathing will improve. So once your deconditioning improves and your breathing improves, your cough will also improve. Regarding rash, you can take antihistaminic like Allegra, 180 milligram once a day for 7 days, and this rash will also improve. But most important thing in current times for all of us who are positive, who are not positive, who are taking vaccine, who are not taking vaccine, is to maintain very good hydration. If we maintain our good hydration, this cough will also go away. Vaccine we are also taking, that is very important. And even in COVID, we have to maintain very good hydration. And if normally also we maintain very good hydration, lot of side effects can be prevented from many diseases. बिल्कुल डॉक्टर विक, जब हम पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं तो कई गंभीर सिम्टम्स भी सामने आ रहे हैं जो काफी दर्शकों के लिए, लोगों के लिए काफी चिंता का सबब बन रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें ड्राई कफ है, ऐसे में कई मैसेजेस आए हैं जहां पे उनको ब्लड विजन की शिकायत हो रही है और बुखार लगातार बना हुआ है हल्का, चाहे वो 100 से नीचे ही हो। ऐसे में क्या कुछ सलाह आप उन्हें देंगे? देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, हमें मन से डर को निकालना है, हमें अपने मन में विश्वास रखना है। ये 2 चीजें हम करेंगे तो हम कोरोना से 99% वॉर जीत जाएंगे। ये एक वायरल इलनेस है, हम इसे वायरल इलनेस की तरह रखें। पोस्ट वायरल फटीग होता है, पोस्ट वायरल सिंड्रोम होता है, जिसमें फटीग होता है, मसल एक्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, और मेजॉरिटी ये लंग्स को अफेक्ट करता है। तो लंग्स की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, उसके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज और वॉक करना बहुत जरूरी है। जहां तक ये डर लगा हुआ है कि मेरे हार्ट को कुछ हो जाएगा, मेरे लिवर को कुछ हो जाएगा, किडनी को कुछ हो जाएगा, ब्रेन को कुछ हो जाएगा, तो उसमें हमें ये ज्यादा होता नहीं है किसी में। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। हमने पोस्टमार्टम बायोप्सी करके भी देखा तो हार्ट उसमें ठीक था, लेकिन मेरा कहने उसमें इन्फ्लामेशन नहीं थी। हार्ट की बायोप्सी में लिवर भी ठीक था, उसमें बहुत मिनिमल इन्फ्लामेशन थी, और ये तो बहुत सिक पेशेंट थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमें मरीज को मरीज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। मरीज को अपने डॉक्टर से पोस्ट कोविड टाइम में बहुत ज्यादा संपर्क में रहना चाहिए, ताकि मरीज की जो भी तकलीफ हो वो डॉक्टर ही ठीक करे। और उसमें होता क्या है कि मरीज को और कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, उसको हार्ट प्रॉब्लम है, उसको लिवर की प्रॉब्लम पहले ही है, उसको लंग्स की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है। बिकॉज अभी तो हमें, और फिर वो डॉक्टर ही डिसाइड कर लेगा भाई मुझे क्या क्या आगे, इसका कितना आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। तो ये अपने डॉक्टर के संपर्क में टेली कंसल्टेशन से इस समय रहना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा दूसरा संदेश है। और डरे मत भाई, आपको ठीक हो जाएंगे, इससे निकल जाएंगे। थोड़ी खांसी है, थोड़ी वीकनेस है, वो 30 दिन में 40 दिन में ठीक हो जाएगी। उसमें ज्यादा देर आप मत सोचिए, मत घबराइए।
अगर मेरे को थोड़ा हार्ट रेट थोड़ा तेज रह रहा है तो मेरी डीकंडीशनिंग हो गई है। मैं वॉक करूंगा दिन में 4 5 6 बार 6 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए धीरे धीरे बढ़ाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। एक बारी में आप 1 घंटा वॉक मत कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। Right. Dr. Vig, we get this particular question a lot from in different ways. Anin Narula is asking about, kindly advise which vaccine is better, Covaxin, Covishield, now we also have Sputnik. Another question related to this is about, there are a lot of media reports doing around that one vaccine perhaps makes more antibodies than the other. If one has a choice, should one exercise it? What would you say, sir? See what vaccine does in your body. Vaccine tricks your body that you have got some COVID, and then antibodies are produced, and immune response is there in the form of antibodies and T cells. So what I'm trying to say is all vaccines are same. All vaccines are same. Please take vaccine. Please take your vaccine. All vaccines are same. Don't go into this, I'm getting Covaxin, I am getting Covishield, or I'm getting Sputnik. Don't wait, just get the first shot. That is the most important thing. So please take your first shot, because we have to immunize as many as people of our country as fast as possible. But please wear clean mask. In US, what has happened is now people are worried because for adult people are going out, because you have said you should not wear mask outdoors. And sometime indoors also people have become complacent. Now they are worried that children will get, because all children are not vaccinated. Now they are worried that children will get. So now they want to push all children to be vaccinated. So we have to remember this, that please wear mask and get whatever vaccine you are getting, please take it. All vaccines are same. They are safe. They are immunogenic. मैं इसको थोड़ा हिंदी में भी बोलना चाहता हूँ, सभी वैक्सीन एक तरह से सेम हैं। कोई भी वैक्सीन में फर्क नहीं है, वो सेफ हैं, वो आपकी बॉडी को ट्रिक करती हैं और आपके में कोरोना के अगेंस्ट रिस्पांस लाती हैं। तो आप चाहे कोविशील्ड हो, चाहे कोवैक्सीन हो, चाहे स्पुतनिक हो, कोई भी वैक्सीन लीजिए, फर्स्ट शॉट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक द फर्स्ट शॉट, दैट इज द बॉटम लाइन। बिल्कुल। डॉक्टर विग, यहाँ पर एक अर्चना सवाल पूछना चाहती हैं कि वैक्सीन लगने के बाद कुछ लोगों ने जो उनको थोड़ा दर्द हुआ और कमजोरी महसूस की, ऐसे में ये भी एक संकेत जा रहा है कि क्या वैक्सीन लगने के बाद क्या आपकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, आपको कुछ दिन घर के अंदर रहना चाहिए? कितनी सच्चाई है इस तरह की खबरों में? मैं तो चाहता हूं मुझे वैक्सीन लगने के बाद थोड़ा सा बुखार हो, थोड़ा सा दर्द हो, थोड़ी सी कमजोरी हो, मैं तो चाहता हूं। इसका मतलब ये है कि मेरा इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा है। अगर वैक्सीन लगने के बाद मुझे थोड़ा सा बुखार होगा और थोड़ा सा कमजोरी आएगी, इसका मतलब वैक्सीन मुझे लगी, वैक्सीन ने मुझे ट्रिक किया, मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, तो इसका मतलब मेरा इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा बुखार, थोड़ा सा सिम्टम्स होना अच्छी बात है, और वो तो और भी अच्छी बात है। अब इसलिए लेकिन पानी की मात्रा पूरी रखिए और जरूरत पड़े तो क्रोसिन की गोली लीजिए। हर वैक्सीन सेफ है, हमें डरना नहीं है। और मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे चारों तरफ सभी को वैक्सीन लगी होनी चाहिए, नहीं तो मुझे कोविड हो जाएगा जी। ये हमें मैसेज देना पड़ेगा। मुझे अपने माँ बाप को वैक्सीन लगानी है। अगले 2 हफ्ते में सभी अपने माँ बाप को वैक्सीन लगवा दें। क्या ये हम प्रण कर सकते हैं? तो ये 2 काम कर देंगे तो, और मास्क लगाने पे हर किसी को मजबूर कीजिए। हर किसी को हमें क्लीन मास्क पहनने पे मजबूर करना पड़ेगा, तो हम कोविड से जीत गए। फिर आप अनलॉकिंग थोड़ा और अनलॉकिंग स्लो करो, 25% पे करो, 50% पे करो, और जैसे ही 5% पे हमारा पॉजिटिविटी रेट आ जाए, हम टेस्ट इतने ज्यादा करें और हमारे 50% आईसीयू बेड्स जो कोविड के हैं वो खाली हों, तब हम फिर खोल दें, फिर बंद कर दें। तो बड़ा अच्छे मापदंड है ये 2। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट मोर देन 5% बढ़ा और 1% से कम हुआ तो आप खोल के रखो, 5% हो गया तो बंद कर दो। आईसीयू बेड्स कोविड के भी होते हैं, नॉन कोविड के भी होते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में नॉन कोविड के जो हमने तय किए हैं 50% आईसीयू बेड्स, अगर वो खाली हैं तभी मैं खोल पाऊंगा, नहीं तो ये तो 2 दिन में फिर भर जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवनीत विग इस संदेश के साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल बहुत ही साफ शब्दों में और कड़े शब्दों में यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि आपके 2 ही कवच हैं, एक साफ मास्क और वैक्सीन, जो कि आपको बहुत ही जरूर लेने, और एक प्रण लेने के लिए उन्होंने कहा है हम सभी से कि हम सभी को अपने आसपास के सभी लोगों को मास्क पहनने के लिए बोलना होगा और वैक्सीन लेने के लिए उन्हें बोलना होगा। डॉक्टर नीलांबर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भट्ट आपका डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में।
बहुत से ऐसे सवाल हैं इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पर। डॉक्टर, जिस तरह से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो एसेंशियल सर्विस के साथ साथ जो बाकी लोग भी इस वक्त एक बार फिर अपने काम पे लौट रहे हैं, बाजार खुल रहे हैं, मॉल्स खुल रहे हैं, किस तरह के तीन अगर हम आपको बताएं कि जो सख्त कदम उठाने होंगे उन तमाम लोगों को जिनको इस वक्त घर से बाहर निकलना है, तमाम मजबूरियां हैं, रोजगार है, रोजी रोटी है, क्या कुछ चीजों का उन्हें बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए और क्या कुछ सलाह आप उन्हें देंगे? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि अनलॉकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है पूरे देश में और लोग, ये लग रहा है केसेस कम हो गए हैं। 4-4.5 लाख का जो एक सुनामी थी, पैनिक था, वो कम हुआ है। लोगों को लग रहा है कि अब केस कम हो गए हैं, तो थोड़ा इस चीज को मतलब इसको ढिलाई से लेना शुरू कर दिया। हम देख रहे हैं मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग मार्केट्स में भीड़ भाड़ होने लगी है अनलॉकिंग होते ही, काफी लोग एक जगह इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है। अभी केसेस जो आप अगर इसको ऐसे देखेंगे, फर्स्ट फेज में हमारा पीक आया था सितंबर में, तब 90,000 के आसपास केसेस थे। हम उसी स्टेज पे जो सितंबर की स्थिति है उस पर अभी हैं। अगर हम अभी से लापरवाही रखेंगे, अनलॉकिंग पीरियड में हम अननेसेसरी भीड़ भाड़ करेंगे, एक जगह एक साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे और मास्क को सही तरीके से नहीं लगाएंगे, जैसा कि डॉक्टर नवनीत ने बताया था कि मास्क, क्लीन मास्क के साथ साथ उसका प्रॉपर यूज भी बहुत जरूरी है। मास्क को नाक के ऊपर लगाएं, मुंह बंद रखें, चिन और नोज तक पूरा कवर हो और टाइट रहे मास्क। और अगर आपको किसी रिस्क जोन में है, आप तो डबल मास्क लगाएं। रिस्क जोन जैसे हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां कई प्रकार की बीमारी होती है, मरीज आते हैं, कोविड भी हो सकता है, कुछ लोगों को एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं, तो या कोई ऐसी बहुत बैंक में है, काफी रस है, वहां पर भीड़ लगी हुई है, तो ऐसी जगहों पर डबल मास्क लगाएं और आप सोशल डिस्टेंसिंग को रूल को फॉलो करें और साथ साथ हैंड हाइजीन और सैनिटेशन, इसका भी पर्याप्त ध्यान रखें। इन सब चीजों के साथ साथ अब हमारे पास एक अच्छा विकल्प है वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन हम जरूर करवाएं और जितना समय हो सके जल्दी Right, Dr. Bhatt, vaccination is crucial. If I can quickly take a phone call. A caller is with us, Irfan from Delhi. Irfan, hello. Hello. Hi, Irfan. Your question, please. अपना सवाल पूछें. Hi, good afternoon, doctor. Sir, exactly 25 days ago, I had a dog bite, and last of that anti-rabies vaccine is scheduled for 28th day, like this coming Saturday. And on that same day, I have a reservation for my COVID vaccine. So, is there any problem with that? No, Mr. Irfan, you don't have any problem. You can get 2 vaccines in the same day, or you can take it on next day. The rabies vaccine can be taken 1 day ahead or 1 day later on. There are usually now 5 doses are there. You can have 1 day prior or before, and even on same day. You see, we are having multiple vaccination in your childhood, DPT, polio, measles. On single day, we take 2-3 vaccines. So the same process is here. We can take multiple vaccine in a same day. बिल्कुल। साथ ही साथ डॉक्टर भट्ट, यहाँ पर जो लोग कोविड पॉजिटिव रहे हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस उनके सामने काफ़ी गंभीर समस्या लेकर आ रही है, कुछ उन लोगों के लिए भी आप कुछ सलाह यहाँ पर दे पाएंगे? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी उनको महसूस होती है, धुंधलापन हो गया या बुखार बने रहना, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए क्या संदेश आप दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों के साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कड़ाई से पालन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे में किस तरह की सलाह देंगे उन तमाम चिंतित अभिभावकों को? यह जरूर चिंता है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन ट्रायल में है। अभी 18 साल से नीचे के बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं। हो सकता है शीघ्र ही उनके लिए खुशखबरी आए और 12 साल के बाद हमारे देश में भी वैक्सीन बच्चों को लगना शुरू हो जाएगी। उससे और बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें कोविड का इतना प्रभाव होता नहीं, उनका इम्यून सिस्टम और जो रिसेप्टर्स हैं कोविड बाइंडिंग, वो इस तरह के होते हैं छोटे बच्चों में कि उनको कोविड नुकसान अधिक नहीं करता है। लेकिन बच्चों के पेरेंट्स को पैनिक होना जरूरी है। इसीलिए ये लॉकडाउन भी लगा है कि बच्चों के स्कूल अभी बंद हैं। आपने देखा होगा CBSE के 12th और 10th के बोर्ड भी कैंसिल हो गए हैं। तो यह सब बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए ध्यान में रखा गया निर्णय है।
इसके लिए सभी को चिंता करनी होगी। जैसे ही वैक्सीनेशन भविष्य में, अगर उम्मीद है यूएस में तो वैक्सीनेशन 12 साल के ऊपर स्टार्ट हो गया, हमारे देश में भी हो जाएगा। दूसरा सवाल आपका था पोस्ट कोविड जो सिचुएशंस आ रही है उसमें मरीजों को काफी पैनिक हो रहा है। अधिकतर हम देख रहे हैं कि सिर दर्द, बदन दर्द, छाती दर्द, सांस फूलना, घबराहट होना। घबराहट एक बहुत बड़ा सिम्टम्स है, जिस हार्ट रेट बढ़ जा रही है। सब आदमी की एंजाइटी से है कि व्यक्ति बीमार हुआ है, उस स्टेज से निकला है तो जरूर उसको एंजाइटी होगी। लेकिन ये आप विश्वास करिए कि अगर आप 2-3 हफ्ते के बाद ठीक हो चुके हैं तो उसके आगे 1-2 महीने में, 3 महीने में आप पूरी तरह से पोस्ट कोविड इलनेस से भी बाहर आ जाएंगे। Right, Dr. Bhatt, we're just a little out of time. दोबारा से बीमारी पैदा हो जाए। Right, very important inputs by you, sir. Thank you very much for joining us with all that advice and perspective. Dr. Nilambar Bhatt, thanks very much. Thank you to all our viewers for putting the questions that they did today. And with that, we conclude this edition of Dr. Speak. Remember to follow all COVID-appropriate behavior and get your vaccine at the earliest. बिल्कुल, और लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा डी न्यूज़ पर। नमस्कार। नमस्कार।